Good morning, students. Today again I am back with the second numerical on nodal analysis. The figure is in front of you. Now, first of all, again the step 1. I will name the nodes. Now, what is the node? Again I am telling you, where two or more than two circuit elements meets at a point. So this is again a node. A, B, C, D, E, F, G. Now how many nodes are there? A, B, C, D, E, F, G. Okay. Step 2. Okay. Find the number of junctions. Now how many junctions are there? Where three or more than three circuit elements meets at a point. Here, this is a junction. Three circuit elements meeting at a point. A, B, three circuit elements meeting at a point. C, three circuit elements meeting at a point. And E. Now there are total 4 junctions. Step 3. Name the nodal voltages. There are junction minus 1 nodal voltage. Now there are 4 junctions A, B, C, D. A, B, C, E. Okay. Now you will name first of all A as a VA, B as a VB, C as a VC, and the leftover junction, that is 4 minus 1, 3. Okay. Now 3 nodal voltage you have assumed. The fourth nodal voltage is a reference voltage. Is a reference voltage, or you can say is equal to 0 volt. Now this E as a 0 volt we will assume, that is VE is equal to 0. That is reference voltage. Step 4. Give direction of current. Okay. Now branches. Now I have named the nodes. This as a VA, this as a VB, this as a VC, and this as a E as a 0 volt. Okay. Now I am naming the current I1, I2, I3, I4, I5, I6. Okay, 1, 2, 3, 4. And now I have named the current in all the 6 branches, as there are 6 branches as I am watching. Okay, that is I1, I2, I3, I4, I5, I6. So these are 6 current that we have to find out using nodal analysis. Step number 5. Apply Kirchhoff's current law at each junction or a nodal voltage. Okay, so first of all we will apply at A. That is at A. Sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. What is incoming? I1 is incoming. I1 is equal to I2 plus I6. Now, what is I1? That is a voltage upon distance. This current is coming from here. Here is a 0 volt. Negative to positive, 5 volt. 0 plus 5. Now you are moving toward A. There is a potential A, VA. Okay. That is minus VA divided by, what is the resistance in this branch? 2 ohm is equal to I2. This I2, it is flowing from VA to VB. The potential is, current always flow from higher potential to lower potential, that is from VA to VB.
that is VA minus VB upon 2 plus I6. Now the current is flowing from A to C. Okay, that is VA ओके यहां से स्टार्ट किया करंट आपने, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, -5 कहां तक जा रहे हैं, सी तक, माइनस VC डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, 4 ओम। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे हम। फिर हम किस पे लगाएंगे, एट बी, किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर लगाएंगे, बी पर। यहां पे इनकमिंग करंट क्या है, I2 है, यहां पे इनकमिंग क्या है, आउटगोइंग क्या है, I3 और I4। अब आप I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 कितना है, करंट फ्लो कर रहा है VA से VB तक, दैट इज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, 2। दैट इज करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। I3 कितना है, I3 यहां से अगर आप ध्यान से देखें, ये B से लेके E तक जा रहा है। B पे कितना पोटेंशियल है, VB, E पे कितना है, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, 4 ओम, प्लस I4 जा रहा है B से C तक। ना यहां पे पोटेंशियल कितना है, VB, यहां पे पोटेंशियल कितना है, VC डिवाइडेड बाय 3 ओम। ओके, नाउ ये सेकंड इक्वेशन यहां से आ जाएगी सॉल्व करके, इसको नंबर 2 दे दीजिए। अब मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे लगाया है, सी पे। सी पे देखिए इनकमिंग करंट क्या है, I4 है, और इनकमिंग क्या है, I6 है, और आउटगोइंग कौन सा है, I5। सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। I4 कितना है, B से लेके C तक जा रहा है, और B पे पोटेंशियल VB, C पे है VC डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 3 ओम। 6 पर अगर I6 की बात करें, A से चल रहा है, A पे पोटेंशियल कितना है, VA, ऊपर गया, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव गए, -5 कहां तक गए, माइनस VC, कितना डिस्टेंस है, 4 ओम। I5 देखिए अगर आप ध्यान से यहां से चले, यहां कितना पोटेंशियल है, VC, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, -10 कहां तक गए, E तक, -0 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, इस ब्रांच में, 3। एक ही इक्वेशन आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, और वेरिएबल भी कितने थे अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3। इन 3 इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, पहले भी मैंने सिखाया था मैट्रिक्स मेथड से। ओके, 3 इक्वेशन आप VA, VB और VC की फॉर्म में निकाल लेंगे। उन तीनों को आप सॉल्व करेंगे, यहां पे एलसीएम लेने के बाद। सॉल्व कैसे करेंगे, इस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड होता है, जैसे कि डेल्टा आ गया आपका, मैं तरीका सिखा रहा हूं आपको, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, डेल्टा। ओके, ऐसे डेल्टा 1 निकाल लेंगे। जो इक्वेशन होती है 3, मान लीजिए 3 इक्वेशन है आपकी किस फॉर्म में, BA BB BC में, A1 BA A2 BB A3 BC is equal to B1। ओके, B1 BA B2 BB B3 BC is equal to B2, C1 BA plus C2 BB plus C3 BC is equal to B3। तो ये 3 इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, तो कैसे किया, पहले डेल्टा ले लेंगे, ऑप्शन लिखिए। डेल्टा 1 क्या होगा, जो राइट साइड है उसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे आप। फिर डेल्टा 2 निकाल लेंगे आप, सेकंड कॉलम पर रिप्लेस कर देंगे राइट साइड से, D1 D2 D3 से। यहाँ पे A1 B1 C1 आएगा, यहाँ पे A3 B3 C3 आएगा, ऐसे आप डेल्टा 3 निकाल लेंगे। ओके, थर्ड कॉलम पर रिप्लेस कर देंगे आप, यहाँ पे A1 B1 C1 आएगा, यहाँ पे A2 B2 C2 आएगा, और राइट साइड क्या है, D1 D2
देखिए, तो यहां से आप अगर VA निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा। यहां से अगर आप VB निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा। और अगर आप VC निकालना चाहते हैं तो डेल्टा 3 बाय डेल्टा। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान एक बात का रखना है आपने कि जो डेल्टा है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आंसर आपके आएंगे, वरना नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे अप।